All right, students. So let's start our lecture. Good afternoon to everyone. First of all, we will see that within last lecture what we have covered within information system subject. That is, we have started with the topic that is 3.3.1, that is characteristics of management information system, within which we have seen 7 to 8 characteristics, right? After that, we have seen role of MIS, within which we have compared role of MIS with the role of heart in our body, right? That we have completed within last lecture. After that, we have started with the topic that is 3.3.2, development process of MIS, within which we have compared the steps that is to be performed within the development of MIS to the software engineering steps, right? That is software development life cycle. So these were the steps till maintenance, and after that we have seen that after development of the MIS, what are the functions of MIS, and that we have seen that is collect data, store and process data, and present information to managers. So these were the things which we have covered within last lecture. Now within this lecture we will start with the topic that is functional aspects of MIS. Again, I repeat, within this lecture, we will start with the topic that is functional aspects of MIS. That is, we will within this topic, हम 4 to 5 डिपार्टमेंट्स देखेंगे. फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है, फिर फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है. वो सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर अगर हम MIS यूज करते हैं तो वहाँ पे सब सिस्टम्स कौन सी होगी एंड उसके साथ साथ वो कौन सी रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे, राइट? वो हम देखेंगे, right, within this topic. Okay, so first of all we will start with the MIS for financial, that is financial department के लिए जो management information system होगी उसके related पहले हम discussion करेंगे. So the thing is that within functional aspects of MIS, first of all we will see financial management information system, right? Okay. Now ये financial MIS क्या provide करेगा? Obviously, as we are talking about financial department, तो वो financial information वो provide करेगा. किसे provide करेगा? To the executives and other people of our organization कि जिसको decision लेने की जरूरत है. लेकिन कैसे टाइप के decision? Daily basis के ऊपर जो भी डिसीजंस लेने की जरूरत है, राइट, उसके अंदर वो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करेगी, दैट इज फाइनेंशियल MIS, वो हेल्प करेगा. ओके, अगर हम फाइनेंशियल MIS की बात करें तो उसके कौन कौन से फंक्शंस होंगे? सो फर्स्ट फंक्शन, ऑब्वियसली उसे सारी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. अब कौन सी इंफॉर्मेशन होगी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, एंड अलोंग विद दैट वो मल्टीपल सोर्सेज के ऊपर से भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, इंक्लूडिंग द इंटरनेट. बिकॉज हमने देखा था कि अगर हम MIS की बात करें तो इनपुट के 2 सोर्सेज है, दैट इज इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स. सो अगर हम फाइनेंशियल MIS की बात करें तो उसके अंदर भी मल्टीपल सोर्सेज पे से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको इंटीग्रेट करेंगे. That is the function of financial MIS. What is the another function of financial MIS? Obviously, it will provide us the way through which के हम data को easily access कर सकते हैं. मतलब वो financial users भी हो सकते हैं, non financial users भी हो सकते हैं. Means with the help of intranet, right, or with the help of extranet, जहां से भी information को लाने की जरूरत है, right, वो सारी information को इकट्ठा करके we can provide it to the financial and non financial users, और हम उस हिसाब से facility देंगे तो कि वो easy access हम provide कर सके, right? Okay. Now another function of this financial MIS will be हमें जो भी data available करना है, it should be on timely basis. जब जो डेटा की जरूरत है हमें उस वक्त वो डेटा प्रोवाइड करके देना पड़ेगा, वरना क्या होगा? ऑब्वियसली अगर हम उसके बाद प्रोवाइड करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन की कोई यूज नहीं रहेगा. As we have seen कि characteristics of valuable information के अंदर भी हमने देखा था कि हमें जो भी information provide करनी है वो timely information होनी चाहिए, राइट? सो अगर हम फाइनेंशियल डेटा की बात करें तो वो भी टाइमली बेसिस के ऊपर हमें देना पड़ेगा ताकि जो भी एनालिसिस टाइम है हम उसे कम कर सके, शॉर्टन
कर सके, राइट? ओके, नाउ अनदर फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल MIS इज ऑब्वियसली हम जो फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइड करेंगे उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते होने चाहिए, एंड वो एनालिसिस के भी मल्टीपल डायमेंशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम टाइम को एज वन फैक्टर ले सकते हैं, प्रोडक्ट को एज वन फैक्टर ले सकते हैं, कस्टमर्स को एज वन फैक्टर ले सकते हैं, प्लांट दैट इज अवर मशीनरीज एंड ऑल अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि जो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर यूज करते हैं उसे भी हम वन फैक्टर ले सकते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि जो भी फाइनेंशियल डेटा जनरेट होगा उसके अंदर हम सिर्फ एक ही डायमेंशन यूज करेंगे या फिर एक ही फंक्शन यूज करेंगे। नो, अगर हमें फाइनेंशियल डेटा के ऊपर एनालिसिस करना है और वो डेटा अगर फाइनेंशियल MIS थ्रू हमें मिले हैं तो उसके अंदर हमें मल्टीपल डायमेंशंस का यूज करके हम वो फाइनेंशियल डेटा को प्रोवाइड कर सकते हैं। अनदर इज जो भी हिस्टोरिकल डेटा है या फिर करंट डेटा है, राइट, उसके ऊपर हम एनालिसिस कर सकते होने चाहिए, मतलब उस हिसाब से हमें फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइड करने हैं। क्यों हिस्टोरिकल डेटा की जरूरत पड़ती है, क्यों करंट डेटा की जरूरत पड़ती है, क्यों दोनों को कंपेयर करने की जरूरत पड़ती है, राइट? तो हमें क्या करना है, वहां पे हमें हिस्टोरिकल और जो करंट फाइनेंशियल डेटा होंगे उसके ऊपर एनालिसिस करना पड़ेगा। हिस्टोरिकल डेटा मतलब कैसे डेटा कि फॉर एग्जांपल पास्ट 5 इयर्स के डेटा होते हैं, अगर उसको हमें करंट फाइनेंशियल डेटा है उसके साथ कंपेयर करवाना है, राइट, कंपैरिजन के बाद उसके ऊपर कुछ हम एनालिसिस करेंगे, या फिर हमें ये भी पता चलेगा कि ओके हमारे लास्ट 5 इयर्स के अंदर जो हमारा प्रॉफिट था, लेकिन अगर हम उसे करंट फाइनेंशियल डेटा के साथ कंपेयर करेंगे तो उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, राइट? सो दीज आर द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज जो हम ये फाइनेंशियल डेटा के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ये फाइनेंशियल MIS। मतलब फाइनेंशियल MIS जो हमें डेटा प्रोवाइड करेगा उसके ऊपर हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। And the last function of this financial MIS is monitor and control the use of funds over time. ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंड्स हो सकते हैं। वो सारे फंड्स एफिशिएंट मैनर में यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अगर कहीं पर कहीं वेस्टेज हो रहा है पर्टिकुलर फंड का तो हम उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इन्वेंट्री की बात करें तो ऐसी रॉ मटेरियल की जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, अगर हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, हमारे फंड्स डालते रहेंगे तो ऑब्वियसली उसका कोई यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मॉनिटर करें और जहाँ जहाँ पे फंड्स का वेस्टेज हो रहा है उसे कंट्रोल करें तो हम बहुत ही अच्छी तरह से ये हमारे फंड्स को मैनेज कर सकते हैं, राइट? एंड दैट इज वो डेटा के जो हमने फाइनेंशियल MIS थ्रू मिला है उसके ऊपर से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, राइट? ओके, अलोंग विद दैट अगर हमें इंटरनल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो भी ये फाइनेंशियल MIS प्रोवाइड कर सकता होना चाहिए। अगेन आई रिपीट, हम यहाँ पे जो फाइनेंशियल MIS सिस्टम की बात कर रहे हैं वो सिस्टम थ्रू हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती होनी चाहिए कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल करने की ज़रूरत है या फिर मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है वहाँ पे भी हमें हेल्प होनी चाहिए। और अलोंग विद दैट किसे ये इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते होने चाहिए, ऐसे इंडिविजुअल्स की जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के तो है ही, लेकिन अलोंग विद दैट ऐसे इंडिविजुअल्स की जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के नहीं है, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, फाइनेंशियल एजेंसीज होती है, राइट, अगर उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जरूरत पड़े तो वो भी हम प्रोवाइड कर सकते होने चाहिए ताकि हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी चीजें अच्छी तरह से कंट्रोल कर सके, मैनेज कर सके, राइट? Okay, now another important thing, depending on the organization needs, right, financial MIS should include internal as well as external systems. Again I repeat students, according to the organization needs. अगर आपको याद हो तो हम लोग ने ये पॉइंट आगे भी डिस्कस किया है, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS देखा था, उसके अंदर हमने देखा था कि वो MIS के अंदर जो भी सब सिस्टम्स है उसके साथ साथ MIS के बाहर की जो सिस्टम्स है दैट इज एक्सटर्नल सिस्टम्स, राइट, उसके साथ भी हमारी सिस्टम अच्छी तरह से वर्क करनी चाहिए,
राइट, ताकि हम क्या कर सके, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, कैश, फंड, राइट, जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, हम उसे अच्छी तरह से यूज कर सके और हम उसे अच्छी तरह से कंट्रोल कर सके। बिकॉज स्टूडेंट्स, इट इज नॉट लाइक दैट कि हर बार जब भी हम कोई फाइनेंशियल एमआईएस या फिर सिंपल कोई एमआईएस की बात करते हैं तो उसके अंदर वो सारी चीजें इंक्लूड हो सकती है। नो, ये तो हमने ईआरपी वाले टॉपिक के अंदर भी देखा था कि अगर हमें ईआरपी के बाहर की, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के बाहर की कोई सब सिस्टम को ईआरपी के साथ वर्क करवाना है तो वो भी हम कर सकते होने चाहिए। मीन्स यहाँ पे हमें इंटरनल सिस्टम अलॉन्ग विद दैट हमें एक्सटर्नल सिस्टम दोनों का यूज एक साथ करना है, राइट दोनों को इंक्लूड करके हमें सारे रिसोर्स को मोर प्रिसाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करना है, राइट। ओके, now which are the subsystems of financial MIS? Profit loss, cost accounting, right, auditing, these are the subsystems of financial MIS. And along with that students हमें यहाँ पे ये भी याद रखना है कि ये जितनी भी subsystems है, right, वो सारी subsystems transaction processing systems के साथ interact करेगी, because transaction processing systems valid transaction का database generate करके हमें देगा और उसके बाद वो वैलिड ट्रांजैक्शन का डेटाबेस ये फाइनेंशियल एमआईएस उसे यूज करेगा, राइट, एंड उसके अंदर वो उसे उसके ऊपर एनालिसिस करके जो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आउटपुट्स प्रोवाइड करने हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स प्रोवाइड करने हैं, वो उसे प्रोवाइड करके देगा। और ऑब्वियसली जो भी रिपोर्ट्स आएंगे वो किससे हेल्पफुल रहेंगे, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल मैनेजर्स है उन्हें वो यूजफुल रहेंगे ताकि वो अच्छी तरह से उसके ऊपर डिसीजन ले सके, राइट। सो स्टूडेंट्स, जैसे हमने इन जनरल एमआईएस के अंदर देखा था कि वो टीपीएस के साथ इंटरेक्ट करता है, लाइकवाइज अगर हम फाइनेंशियल एमआईएस की बात करें या फिर हम कोई भी दूसरे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हो, अकाउंटिंग रिलेटेड हो, मार्केटिंग रिलेटेड हो, किसी भी रिलेटेड हो, सारी एमआईएस टीपीएस के साथ इंटरेक्ट कर सकती होनी चाहिए, राइट। Okay, so the first subsystem of financial management information system is profit loss and cost system. Okay, as the name says profit loss and cost system, मतलब ये particular subsystem का use करके हम कैसे information को manage करेंगे, the information which are related to revenue and cost. हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यू रिलेटेड, एक्सपेंस रिलेटेड, इनकम रिलेटेड, कॉस्ट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होंगे, जो भी डेटा होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन ये पर्टिकुलर सब सिस्टम थ्रू मैनेज होगी, राइट। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, ये जो रेवेन्यू रिलेटेड डेटा हम बात कर रहे हैं, एक्सपेंस रिलेटेड डेटा की हम बात कर रहे हैं, इट इज टू बी कैप्चर्ड फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स। अगेन आई रिपीट, इट शुड बी कैप्चर्ड फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स, लेकिन वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट से कैप्चर नहीं होंगे, डिपार्टमेंट की जो टीपीएस सिस्टम होगी उसमें से ये कैप्चर होंगे, एंड दैट विल बिकम द प्राइमरी इंटरनल सोर्स। अगेन आई रिपीट, दैट विल बिकम द प्राइमरी इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा कि जो हम ये पर्टिकुलर सब सिस्टम को इनपुट देंगे। सो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि ये प्रॉफिट लॉस एंड कॉस्ट सिस्टम है वो इन शॉर्ट वो हमें क्या ऑर्गेनाइज करके देगा, रेवेन्यू एंड कॉस्ट रिलेटेड डेटा, एक्सपेंस रिलेटेड डेटा हमें यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके देगा। और उसके रिलेटेड प्राइमरी इंटरनल सोर्स कहाँ से मिलेगा हमें, द वेरियस डिपार्टमेंट्स के जो डेटा होंगे जो हम वेरियस टीपीएस में से हम कैप्चर करेंगे, राइट, वहां से हमें ये प्राइमरी इंटरनल सोर्स हम उसे कंसिडर करेंगे, राइट। ओके, नाउ इसके अंदर देयर आर 3 डिफरेंट पार्ट्स, प्रॉफिट सेंटर्स, रेवेन्यू सेंटर्स एंड कॉस्ट सेंटर्स। प्रॉफिट सेंटर्स मतलब ऐसे डिपार्टमेंट कि जिसके अंदर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी नेट प्रॉफिट होते हैं, वो सारी चीजों को ट्रैक करने में काम लगता है। अगेन आई रिपीट, प्रॉफिट सेंटर्स मतलब ऐसे डिपार्टमेंट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कि जो हमें टोटल एक्सपेंस होता है एंड नेट प्रॉफिट्स होता है उसे ट्रैक करने में काम लगता है। Now another type of center is revenue center. Revenue center मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन या फिर हमारी कंपनी का ऐसा डिपार्टमेंट कि जो हमें सेल्स और रेवेन्यू को ट्रैक करने में काम लगेगा।
अगेन आई रिपीट, रेवेन्यू सेंटर मतलब हमारी कंपनी या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा डिपार्टमेंट या फिर ऐसा डिवीजन कि जो हमें सेल्स और रेवेन्यू को ट्रैक करने में काम लगेगा। एंड द लास्ट टाइप ऑफ सेंटर इज कॉस्ट सेंटर। ऑब्वियसली ये कॉस्ट सेंटर मतलब हमारे कंपनी का कौन सा डिवीजन होगा या फिर हमारी कंपनी का कौन सा डिपार्टमेंट होगा। ऑब्वियसली वो ऐसे सेंटर्स होंगे कि जो डायरेक्टली रेवेन्यू जनरेट करके हमें नहीं देंगे, लेकिन रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करेंगे। जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कभी भी रेवेन्यू जनरेट करके हमें नहीं देता है, राइट। हमें मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट थ्रू जो भी फिनिश गुड्स मिलता है, फिनिश प्रोडक्ट मिलता है, राइट, उसे सेल करेंगे तो हमें रेवेन्यू जनरेट करके मिलेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर क्या होगा, जो भी नई प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड हम रिसर्च और उसके ऊपर डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो हमें डायरेक्टली रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देंगे, राइट। उसके थ्रू उसके बाद वो जो उसके अंदर रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, उसका यूज करके हम बाद में रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मतलब कॉस्ट सेंटर्स मतलब ऐसे डिपार्टमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कि जो हमें डायरेक्टली रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देंगे, बट दे विल बी यूजफुल इन जनरेटिंग द रेवेन्यू, राइट। ओके, नाउ अनदर इज ऑडिटिंग। ऑडिटिंग इज द सब सिस्टम। ऑडिटिंग का मीनिंग क्या होता है, एनालिसिस करना, चेक करना, वेरीफाई करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, राइट। नाउ व्हाट इज द थिंग, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, राइट, जो भी रिपोर्ट्स होते हैं, राइट, वो सारे ऑडिटिंग होने चाहिए, मतलब चेक होने चाहिए कि वो सारे रिपोर्ट सही है कि नहीं है। सो यहाँ पे भी फाइनेंशियल एमआईएस के अंदर हम ये ऑडिटिंग के सब सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं, ताकि ये फाइनेंशियल एमआईएस हमें ऐसे रिपोर्ट्स जनरेट करके देंगे कि जो हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को ऑडिट करवाने में हेल्प करेंगे, राइट। सो हमें ऑब्वियसली यहाँ पे एक्यूरेट है कि नहीं है, वो सारी चीजों को हमें मैनेज करना पड़ेगा, वो सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। So that's why it is written over here, students, that it involves analyzing the financial condition of the organization, and it will also determine whether our financial statements and reports which are produced by financial MIS are accurate or not, राइट। मतलब ये ऑडिटिंग सब सिस्टम हमें ये चेक करके देगी कि जो भी स्टेटमेंट्स है, जो भी रिपोर्ट्स है, वो एक्यूरेट है कि नहीं है। अब देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग। इंटरनल ऑडिटिंग भी होता है और एक्सटर्नल ऑडिटिंग भी होता है। इंटरनल ऑडिटिंग मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी इंडिविजुअल्स होंगे वो हमें ऑडिटिंग करके देंगे, और एक्सटर्नल ऑडिटिंग मतलब हम कोई ऐसी कंसल्टेंसी को हायर करेंगे, ऐसी अकाउंटिंग फर्म को हायर करेंगे, मतलब उसे हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे कि वो लोग हमारे अकाउंट्स को ऑडिट करके देंगे, वो लोग हमारे अकाउंट्स को वेरीफाई करके देंगे। एंड ऑब्वियसली दे आर नॉट विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, दे आर आउटसाइड ग्रुप्स, राइट, कि जो ये हमें ऑडिटिंग करके देते हैं। और ऑडिटिंग करने से हमें क्या पता चलेगा, अगर हमारे अकाउंट के अंदर कोई फ्रॉड हुआ है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी हम ये ऑडिटिंग थ्रू हम पता कर सकते हैं, right? That's why this auditing subsystem is very important within financial MIS. And the last subsystem is uses and management of funds. ऑब्वियसली हम यहाँ पे फाइनेंशियल एमआईएस की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी फंड्स है उसे यूज करने के लिए, मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ों करने, मतलब बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, राइट। सो ये सब सिस्टम हमें वहाँ पे हेल्पफुल रहेगी। दैट इज यूजेस एंड मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। हम कहाँ पे हमारे फंड्स को यूज कर सकते हैं, हम कहाँ पे हमारे फंड्स को मैनेज कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें हम ये पर्टिकुलर सब सिस्टम थ्रू जान सकते हैं, राइट। अब ये सब सिस्टम के आउटपुट क्या होंगे, ऑब्वियसली ये सब सिस्टम के आउटपुट हम दूसरी सब सिस्टम के साथ कंबाइन कर सकते हैं, राइट। अगेन आई रिपीट, हम ये पर्टिकुलर सब सिस्टम का आउटपुट दूसरी सब सिस्टम होगी उसके साथ कंबाइन करके हम ये जान सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम है, और अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है तो वो प्रॉफिट इंक्रीज करने में भी हेल्प
करेगा, बिकॉज यहाँ पे हमें यही आउटपुट मिलेगा कि हम कहाँ पे अच्छी तरह से कंट्रोल्ड मैनर के अंदर हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के फंड यूज कर सकते हैं, राइट? ओके, नाउ इंटरनल यूजेस होते हैं एंड एक्सटर्नल यूजेस ऑफ फंड्स होते हैं। इंटरनल यूजेस मतलब फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री लेनी है, दैट इज रॉ मटेरियल, नया प्लांट बनाना है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना है, उसके अंदर इक्विपमेंट्स लेने हैं, एक्स्ट्रा लेबर चाहिए, मार्केटिंग करने की जरूरत है, एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत है, डेवलपमेंट करने की जरूरत है। इन शॉर्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर राइट जो भी चीज करने की जरूरत है, जो भी फंक्शनैलिटी करने की जरूरत है, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने की जरूरत है, वहां पे जो भी फंड्स यूज होंगे दे आर इंटरनल यूजेस ऑफ फंड्स। और एक्सटर्नल यूजेस मतलब फॉर एग्जांपल स्टॉक होता है, बॉन्ड्स होता है, फॉरेन करेंसीज होती है, राइट? दे आर एक्सटर्नल यूजेस ऑफ फंड्स के हमारी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई स्टॉक परचेज करती है, बॉन्ड्स परचेज करती है कोई दूसरी कंपनी के, राइट? या फिर फॉरेन करेंसीज में एक्सचेंज होता है, राइट? सो दीज आर नोन एज एक्सटर्नल यूजेस ऑफ फंड, राइट? So students, this is the subsystem of financial MIS, that is uses and management of funds. Okay. So over here यहाँ पे हमने कंप्लीट किया दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कि जिसके अंदर हमने सब सिस्टम्स देखे और वो सब सिस्टम्स कैसे आउटपुट जनरेट करेंगे और वो आउटपुट हमें कहाँ पे हेल्प करेंगे वो हमने यहाँ पे देखा। Now we will see manufacturing MIS, right? That is ये MIS हमें कौन से डिपार्टमेंट में काम लगेगा? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में हमें काम लगेगा। सो यहाँ पे मैंने वो सब सिस्टम्स दैट इज मॉड्यूल्स को लिस्ट आउट किया है और वो जो रिपोर्ट्स जनरेट करेंगी दैट इज दिस मैन्युफैक्चरिंग MIS थ्रू हमें जो रिपोर्ट्स मिलेंगे वो भी मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं। सो फर्स्ट इज डिजाइनिंग इंजीनियरिंग। ऑब्वियसली अगर हमें कोई भी नई प्रोडक्ट बनानी है, राइट, तो उसके रिलेटेड पहले एक डिजाइन रेडी करनी पड़ेगी, वो किस हिसाब से हम उसे बनाएंगे वो सारी चीजें हमें प्लान करनी पड़ेगी, राइट? सो उसके अंदर जो मॉड्यूल या फिर सब सिस्टम हमें हेल्प करेगा दैट इज डिजाइन एंड इंजीनियरिंग। अनदर इज प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। एक बार हमने ये डिजाइन बना दी है, ओके कि हमें XYZ प्रोडक्ट की ये डिजाइन को यूज करना है, दैट इज कंसिडर करना है, तो अब उसके बाद हम उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रोडक्शन कब स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, उसके रिलेटेड कौन सी इन्वेंट्री चाहिए, राइट? वो सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कैसे करेंगे, उसके अंदर कौन सी प्रोसीजर यूज करेंगे, कौन से मेथड यूज करेंगे, उसकी क्वालिटी किस हिसाब से हम कंट्रोल कर सकते हैं, अगर क्वालिटी बराबर है कि नहीं है, जो क्वालिटी की प्रोडक्ट हमें चाहिए थी वो बराबर है कि नहीं है। अगर ये सारी चीज़ों को हमें टेस्ट करना है तो उसके रिलेटेड हम टेस्टिंग सब सिस्टम भी मैन्युफैक्चरिंग MIS के अंदर बना सकते हैं। इन शॉर्ट हम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए जो MIS कंसीडर करेंगे उसके अंदर हम ये इतनी सब सिस्टम्स बना सकते हैं। एंड ओवर यू हैव टू कंसीडर प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी, प्रोडक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंटरप्राइज, बिकॉज यहाँ पे हम जो भी प्रोडक्शन की बात करते हैं, राइट, इट इज इन टर्म्स ऑफ सम प्रोडक्ट, सम फिनिश गुड। यहाँ पे हम कोई भी सर्विस रिलेटेड अभी बात नहीं कर रहे हैं, राइट? सो ये आपको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग MIS के अंदर हम इतनी सब सिस्टम्स बनाएंगे तो वो हमें हेल्पफुल रहेगी। अब ये सब सिस्टम थ्रू हमें कौन से रिपोर्ट्स मिल सकते हैं? प्रोडक्शन का शेड्यूल रिपोर्ट हम बना सकते हैं। हमने MIS के 5 डिफरेंट रिपोर्ट्स तो देखे हैं इन जनरल। शेड्यूल रिपोर्ट है, डिमांड रिपोर्ट है, एक्सेप्शनल रिपोर्ट है, की इंडिकेटर रिपोर्ट है एंड ड्रिल डाउन रिपोर्ट है, राइट? सो उसी के ऊपर से हम उसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। प्रोडक्शन का शेड्यूल रिपोर्ट हम बना सकते हैं, राइट? मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग रिलेटेड हम रिपोर्ट बना सकते हैं, दैट इज अगर हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, तो उसका हम प्लानिंग करेंगे तो उसके रिलेटेड रिपोर्ट हो सकता है। जस्ट इन टाइम परचेजिंग, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, वो दोनों टॉपिक मतलब उस हिसाब से भी हम उसका रिपोर्ट भी हम यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं, राइट? प्रोसेस कंट्रोल रिपोर्ट, जैसे हमने ऊपर सब सिस्टम है उसकी, तो ऑब्वियसली वो हमें एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा,
राइट कि हम हमारे ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर जो भी प्रोसीजर है, जो भी मेथड्स है, कौन सी प्रोसीजर यूज करेंगे तो कितने टाइम में हमें प्रोडक्शन करके मिलेगा, उसकी प्रोसेस क्या होगी, उसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, अगर क्वालिटी बराबर है कि नहीं है वो चेक करना है तो उसके रिलेटेड भी हम रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हैं कि जिसके ऊपर से हम ये तय कर सके कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, राइट। अगर आपको याद हो तो हमने सेकंड यूनिट के अंदर वो सारी चीजें देखी थी कि हम कैसे परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं, राइट। फिर हमने वो सिस्टम वेरिएबल पैरामीटर्स, वो सारी जो टर्मिनोलॉजीज हमने पर्टिकुलर सिस्टम रिलेटेड देखी थी, राइट। वो सारी चीजें कहीं ना कहीं ये सारे जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होगी वो उसके अंदर यूज होगी। हम कैड रिपोर्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैड रिपोर्ट मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर का यूज करके हम डिजाइनिंग बना सकते हैं, राइट। दैट इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट थिंग, राइट स्टूडेंट्स, बिकॉज अब एज वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, तो कंप्यूटर का यूज करके हम इवन डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, राइट। मतलब कंप्यूटर का यूज करके हम पूरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स है, हमारे जितने भी प्लांट्स है, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट रिपोर्ट्स व्हिच आर जनरेटेड थ्रू मैन्युफैक्चरिंग MIS। ओके, नाउ अनदर, हम थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी देखते हैं कि जो ये मैन्युफैक्चरिंग MIS के अंदर हमें काम लगेगी। ओके, सो द फर्स्ट इज EOQ, that is economic order quantity। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब ऐसी रीऑर्डर क्वांटिटी कि जो हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज करे। ये हमने आगे भी पढ़ा है स्टूडेंट्स कि अगर हम हमारा जो भी फंड है, जो भी हमारे पास कैपिटल है, वो ऐसे रॉ मटेरियल के अंदर, ऐसी इन्वेंट्री के अंदर इन्वेस्ट करके रखेंगे कि जो हमें लॉन्ग टाइम तक काम नहीं लगने वाली है, तो ऑब्वियसली वो फंड वहां पे स्टक हो जाएगा, राइट। वो फंड हम कहीं और यूज नहीं कर सकते। दैट्स वाई हमें उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा कि जो भी हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है वो कम रहे, राइट। आंख बंद करके कोई भी रॉ मटेरियल परचेज नहीं करना है। जब जो रॉ मटेरियल की जरूरत है तब हमें वो परचेज करना है, एंड ये टर्म को हम जस्ट इन टाइम परचेजिंग भी कह सकते हैं, राइट। इट अगेन आई रिपीट, जब जो रॉ मटेरियल की जरूरत है, जब जो इन्वेंट्री की जरूरत है, हम वो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल तब परचेज करेंगे, तो उसे हम जस्ट इन टाइम परचेजिंग भी कह सकते हैं। वो हम आगे देखेंगे, लेकिन इसके अंदर वो रिलेटेड है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हमें उस हिसाब से इन्वेंट्री को रीऑर्डर करना है, उतनी क्वांटिटी को रीऑर्डर करना है कि जो हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज रखे। अनदर इज रीऑर्डर पॉइंट। ऑब्वियसली हमें वहां पे क्रिटिकल इन्वेंट्री क्वांटिटी लेवल सेट करना पड़ेगा कि ओके, अगर ये XYZ रॉ मटेरियल का हमारे पास 500 क्वांटिटी है तो हमें दूसरी ऑर्डर करनी पड़ेगी ताकि हमारा प्रोडक्शन ना रुके। दैट इज रीऑर्डर पॉइंट। मतलब डिपेंडिंग ऑन द इन्वेंट्री, ऐसा नहीं है डिपेंडिंग ऑन द रॉ मटेरियल, ये सारे रॉ मटेरियल्स का ये रीऑर्डर पॉइंट डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं है कि सारे रॉ मटेरियल का एक ही रीऑर्डर पॉइंट होता है। नो, इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर रॉ मटेरियल, बिकॉज कौन सी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए वो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल कितना चाहिए वो भी अलग अलग होता है, राइट। सो दैट इज रीऑर्डर पॉइंट। अनदर इज MRP, दैट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग। वो हमने यहाँ पे रिपोर्ट में भी मैंने डिस्कस किया, राइट। नाउ व्हाट इज ओवर हियर, कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि एक पर्टिकुलर मटेरियल की डिमांड दूसरे मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। अगेन आई रिपीट, हम अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके अंदर हम जो भी मटेरियल यूज करते हैं उसके अंदर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक मटेरियल की डिमांड दूसरे मटेरियल की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर कार मैन्युफैक्चर करनी है तो कार मैन्युफैक्चर करने के लिए अगर मैं उसके कार के डोर्स अभी बना रही हूँ तो डोर के अंदर मेटल तो होता ही है लेकिन उसके अंदर वो ग्लास भी होता है, राइट। सो इट डिपेंड्स कि हमें कार के डोर्स बनाने हैं तो उसके अंदर जो भी रॉ मटेरियल होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट, कि हमें कितने डोर्स बनाने हैं और कितना रॉ मटेरियल वहां पे यूज होगा। सो दैट इज द थिंग, इसीलिए हमें यहाँ पे प्लानिंग करना पड़ेगा,
राइट, कि हम किस हिसाब से कब कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट है और वो पर्टिकुलर मटेरियल की रिक्वायरमेंट किसी और डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे प्लानिंग करके मैनेज करना पड़ेगा। अनदर इज MRP2। MRP2 मतलब मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, राइट। यहाँ पे क्या था, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग, और यहाँ पे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, राइट। यहाँ पे हमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट, इंटीग्रेटेड मैनर में कैसे हम रिसोर्सेस को यूज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, राइट, वो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड अलोंग विद दैट हमें हमारा बिजनेस उस हिसाब से रन करना है कि हमें कस्टमर सर्विस एंड प्रोडक्टिविटी हमें हाई मिले, वो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। सो MRP2 के अंदर, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग के अंदर, हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम शेड्यूलिंग करेंगे, राइट, वो पूरा इंटीग्रेटेड मैनर में वर्क होना चाहिए, राइट, इंटीग्रेटेड मैनर में वो सारी चीजें वर्क होनी चाहिए। एंड इसके अंदर हमें हमारा बिजनेस उस हिसाब से रन करना है कि हम कस्टमर की सर्विस और प्रोडक्टिविटी वो हम हाई प्रोवाइड कर सके, राइट। अनदर इज JIT इन्वेंट्री अप्रोच। सी यहाँ पे है जस्ट इन टाइम, राइट। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री अप्रोच का मीनिंग क्या होता है कि जब जो इन्वेंट्री की जरूरत है तब वो इन्वेंट्री हम परचेज करेंगे, मतलब जब जो इन्वेंट्री की जरूरत है वो इन्वेंट्री तभी डिलीवर होनी चाहिए, पहले से डिलीवर होके हमारे वेयर हाउस में पड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अगर हमारे वेयर हाउस में कोई भी रॉ मटेरियल पड़ा रहता है, इट मीन्स कि हमारे फंड्स वहां पे स्टक हो जाते हैं, राइट। एंड ये अप्रोच प्रैक्टिकली टोयोटा कंपनी फॉलो करती है, राइट। टोयोटा कंपनी उसी हिसाब से जस्ट इन टाइम परचेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग करती है। वो पूरे सारे रॉ मटेरियल का प्लानिंग उस हिसाब से करती है कि कोई भी रॉ मटेरियल उनके गोडाउन में नहीं जाता है, उनके वेयर हाउस में नहीं जाता है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर ही वो डिलीवर होता है। लाइक मीन्स उस हिसाब से वो प्लानिंग करते हैं। दैट इज जब जहाँ पे जो भी इन्वेंट्री की जरूरत है तभी वहां पे वो इन्वेंट्री डिलीवर होगी। Another is CAM, that is computer aided manufacturing, मतलब कंप्यूटर का यूज करके हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पे मिलेगा। ओके, अनदर इज CIM, that is computer integrated manufacturing। हमें पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस को एक दूसरे के साथ लिंक करने के लिए, राइट, ये CIM यूज होगा। मतलब हम कंप्यूटर का यूज करके हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उसे हम लिंक करेंगे। दैट इज CIM, दैट इज कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे क्या था, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर काम लगेगा। यहाँ पे क्या है, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है उसे लिंक करने के लिए कंप्यूटर काम लगेगा। Another is FMS, that is flexible manufacturing system। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रैपिड मैनर के अंदर हम कैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं, राइट, वो हम इस ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी में कंसिडर करेंगे। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज एन अप्रोच कि जो हमें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को, राइट, अगर हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे कोई ड्रास्टिक मॉडिफिकेशन लाने की ज़रूरत है ताकि हमारा प्रोडक्शन अच्छी तरह से हो, हम प्रोडक्ट अच्छी तरह से बना सके, तो ये FMS हमें वहाँ पे काम लगेगा। दैट इज फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। अगर कोई सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है, अगर कोई सिस्टम को ड्रास्टिक चेंज करने की ज़रूरत है, तो ये सिस्टम हमें वहाँ पे हेल्प करेगा, राइट। And another is SQA, that is simple, quick and affordable। उसके अंदर क्या हम कंसिडर करेंगे, बहुत सारी कंपनीज ये अप्रोच यूज करती है ताकि वो लोग इन्वेंट्री लेवल और उसके रिलेटेड जो कॉस्ट है वो कम से कम रख सके, दैट इज एज लो एज पॉसिबल। अगेन आई रिपीट, SQA वो ऐसा अप्रोच है कि जो बहुत सारी कंपनीज फॉलो करती है ताकि वो लोग इन्वेंट्री लेवल और उसके रिलेटेड जो कॉस्ट है वो लो रख सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बहुत बार ये पॉइंट ये मैन्युफैक्चरिंग MIS के अंदर डिस्कस किया है,
राइट, कि हमें उतनी ही इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है, वही वक्त पे इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है कि जब वो काम लगे। सो उस हिसाब से अगर हम इसके अंदर कंसीडर करें तो हमें इन्वेंट्री का लेवल उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा ताकि जो भी इन्वेंट्री लेवल और कॉस्ट है वो कम से कम हो, राइट, दैट इज SQA. All right. So students, this is all about manufacturing MIS, which is the second functional aspect of MIS. फर्स्ट फंक्शनल एस्पेक्ट हमने कौन सा देखा, दैट इज फाइनेंशियल MIS. उसके अंदर हमने उसकी सब सिस्टम्स देखी और वो सब सिस्टम्स कौन से रिपोर्ट्स जनरेट करती है वो देखे. उसके बाद हमने मैन्युफैक्चरिंग MIS देखा. मैन्युफैक्चरिंग MIS की सब सिस्टम्स या फिर मॉड्यूल भी हम उसे कह सकते हैं, वो देखे और वो कौन से रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं वो देखे. एंड along with that we have seen some terminologies which are important, which are related to this manufacturing MIS, right? वो सारी terminologies भी मैंने यहाँ पे देखी. The third functional aspect is marketing MIS. Again I repeat, the third functional aspect is marketing MIS. As the name says, अगर हम फाइनेंशियल MIS की बात करते थे तो वो हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर हेल्प करता था. मैन्युफैक्चरिंग MIS की बात की तो वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर वो हमें हेल्प करेगा. मार्केटिंग MIS है तो वो हमें मार्केटिंग रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होगी उसके अंदर हमें हेल्प करेगा. दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसके रिलेटेड प्राइस रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए, प्रोडक्ट रिलेटेड प्रमोशन करने के लिए, राइट, सेल्स रिलेटेड जो भी फोरकास्टिंग करना है, ये सारी जगहों पर हमें ये मार्केटिंग MIS हेल्प करेगा. मीन्स वी कैन से ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए मार्केटिंग MIS हमें हेल्प करेगा. मार्केटिंग MIS की सब सिस्टम्स कौन सी होगी, मार्केटिंग रिसर्च. अगर हम कोई भी नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो हमें पहले मार्केट का रिसर्च करना पड़ेगा कि ये XYZ प्रोडक्ट हम मार्केट में लाना चाहते हैं तो अभी ये प्रोडक्ट चलेगी कि नहीं चलेगी. उसके रिलेटेड हम रिसर्च कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, उसके रिलेटेड यहाँ पे सब सिस्टम हम कंसिडर कर सकते हैं. अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, उसके रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट करनी है, प्रमोशन करना है, तो वहाँ पे भी ये मार्केटिंग MIS की सब सिस्टम हमें हेल्प करेगी कि किस हिसाब से विच आर द डिफरेंट वेज टारगेट मार्केटिंग करना है, राइट, कि कोई पर्टिकुलर पीपल को टारगेट करना है, पर्टिकुलर एज के पीपल को टारगेट करना है, रीजन को टारगेट करना है, कहाँ पे मार्केटिंग करना है, किस हिसाब से मार्केटिंग करना है, राइट, सिर्फ होर्डिंग्स लगाएंगे या फिर हम टेलीविजन पे रखेंगे या फिर XYZ कैसे हम प्रमोशन करेंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं और उसके रिलेटेड सब सिस्टम हम ये मार्केटिंग MIS के अंदर बना सकते हैं. अनदर इज ऑब्वियसली प्रोडक्ट रिलेटेड प्राइस डिसाइड करने में कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी प्राइस हम रख सकते हैं, राइट, ताकि मार्केट में जो कस्टमर्स है वो हमारी प्रोडक्ट को प्रीफर करे. प्रोडक्ट डेवलप करनी है तो कैसी प्रोडक्ट डेवलप करनी है, राइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मार्केट में कैसी प्रोडक्ट चलेगी, राइट. सो ये सारी चीजें करने के लिए, दैट इज ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए हम मार्केटिंग MIS के अंदर सब सिस्टम्स कंसिडर कर सकते हैं. ऑब्वियसली अगर सब सिस्टम्स है तो उसके रिपोर्ट्स होंगे. कस्टमर सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट, हमारी प्रोडक्ट के हिसाब से कस्टमर सेटिस्फाई है कि नहीं है, उसके रिलेटेड हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं. प्राइस रिलेटेड रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, राइट. सेल्स रिलेटेड भी हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना सेल्स है, पर्टिकुलर सेल्स पर्सन ने कितना सेल किया. कस्टमर वाइज भी हम सेल्स रिपोर्ट बना सकते हैं कि ये पर्टिकुलर रीजन के कस्टमर है तो वहाँ पे कितना सेल हुआ, right. Means there are different types of reports which can be generated through marketing MIS which are related to the activities कि जहाँ पे हम हमारी प्रोडक्ट को प्रमोट करें, मार्केट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, राइट. एंड वी कैन ऑल्सो फोरकास्ट द सेल. फोरकास्टिंग मतलब हम ऐसा मतलब सोच सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, डिपिक्ट कर सकते हैं कि ओके लास्ट मंथ में XYZ प्रोडक्ट की 1 लाख क्वांटिटी सेल हुई थी तो मे बी पॉसिबल अब अच्छी तरह से सबको हमारी प्रोडक्ट के रिलेटेड पता चल गया है तो ये मंथ में, करंट मंथ में मे बी पॉसिबल हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग 1,25,000 क्वांटिटी भी हो सकती है. दैट इज फोरकास्टिंग. हम पहले से ऐसा जानते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि क्या सेलिंग होगी, राइट. ओके, सो दैट इज
functional aspect of MIS, that is marketing MIS. Another is human resource MIS. It is also known as personal MIS, right? As the name says, ये हमें कहाँ पे help करेगा? This information system is concerned with the activities which are related to the employee of an organization. हमारी organization के अंदर जो भी employees है, उनके related जो भी activities perform करने की ज़रूरत है, ये human resource MIS, or we can also say it as a personal MIS, वो हमें वहाँ पे काम लगेगा. इन शॉर्ट, अगर हमें कोई स्टाफ को रिक्रूट करना है, वहां से लेके सैलरी वेजेस को मैनेज करने तक वो हमें हेल्प करेगा. दैट इज ह्यूमन रिसोर्स MIS. और वो हर जगह पे, हर एक्टिविटी में जो भी सब सिस्टम्स की जरूरत पड़ेगी, वो हम इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कौन से डिपार्टमेंट में कितने ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, मतलब कितने मैन पावर की ज़रूरत है, उनकी स्किल्स क्या होगी, उनकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, कैसी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें, वो सारी एक्टिविटीज़ रिलेटेड हम प्लानिंग कर सकते हैं. फिर अगर हमें कोई इंटरव्यू कंडक्ट करना है तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगी, अगर हम रिक्रूट करते हैं तो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है कि नहीं है, उनकी स्किल्स क्या होगी, वो उसके रिलेटेड भी हम प्लानिंग रिलेटेड सब सिस्टम बना सकते हैं. अगर हमें इंटरव्यू शेड्यूल करना है या फिर जॉब प्लेसमेंट शेड्यूल करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ दिस ह्यूमन रिसोर्स MIS, राइट. अनदर थिंग कि जो भी वेजेस होंगे, सैलरी होगी, उसको भी मॉनिटर करने के लिए, उसे भी कंट्रोल करने के लिए, या फिर उसके रिलेटेड हम पेरोल सिस्टम भी इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं. इन शॉर्ट, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होगी, वो एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो MIS हमें हेल्प करेगा, दैट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स MIS या फिर पर्सनल MIS, राइट. और उसकी सब सिस्टम्स मैंने यहाँ पे आपको समझाई. ऑलराइट, ऑब्वियसली सब सिस्टम्स है तो उसके रिपोर्ट्स होंगे. सो द थिंग इज दैट बेनिफिट रिपोर्ट्स मतलब यहाँ पे बेनिफिट टर्म इज रिलेटेड टू द एम्प्लॉय के जो हम एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है कि एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवा के देती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है कि एम्प्लॉय के मेडिक्लेम्स करवा के देती है, राइट. लाइक दिस वे, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है कि जो ट्रैवलिंग अलाउंस प्रोवाइड करती है, राइट. मीन्स बेनिफिट रिलेटेड जो हम एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करते हैं उसके रिलेटेड हम रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं. सैलरी रिलेटेड रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं. शेड्यूलिंग रिलेटेड, यहाँ पे शेड्यूलिंग कौन सी सब सिस्टम के साथ रिलेटेड है? ऑब्वियसली जो भी हमने प्लेसमेंट, इंटरव्यू, वो एक्टिविटीज हमने डिस्कस की, उसके रिलेटेड हम यहाँ पे शेड्यूलिंग रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं. ट्रेनिंग के टेस्ट को रिलेटेड रिपोर्ट भी हम जनरेट कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे सेकंड सब सिस्टम के अंदर डिस्कस किया कि अगर हमें एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नई सिस्टम आ रही है, तो उसके रिलेटेड ऑब्वियसली हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि हमारे एम्प्लॉयज वो सिस्टम को यूज़ कर सके. तो ट्रेनिंग देने के बाद हम छोटी सी टेस्ट भी कंडक्ट कर सकते हैं ताकि हम जान सके कि एम्प्लॉयज को वो पर्टिकुलर सिस्टम के रिलेटेड सब कुछ पता चल गया है कि नहीं चला है. तो वो टेस्ट को रिपोर्ट भी हम जनरेट कर सकते हैं. जॉब एप्लीकेंट्स की प्रोफाइल रिलेटेड रिपोर्ट भी हम जनरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने थोड़े बहुत क्राइटेरियाज रखे होते हैं कि जो भी जॉब एप्लीकेंट है उसके अंदर ये एक्सपर्टीज होनी चाहिए, उनके पास ऐसी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, तो उसके रिलेटेड हम रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे मेरे ये जो एडवर्टाइजमेंट मैंने की है फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर, उसके अंदर जिसे PHP आता है वही जॉब एप्लीकेंट्स की प्रोफाइल मुझे देखनी है, या फिर .NET आता है वही जॉब एप्लीकेंट्स की प्रोफाइल मुझे देखनी है, तो उसके रिलेटेड हम रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं. एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, नीड्स एंड प्लानिंग. अगर कोई नए मैन पावर की ज़रूरत है, नए एक्सपर्टीज वाले मैन पावर की ज़रूरत है, तो उसके रिलेटेड भी कौन से डिपार्टमेंट में वो नीड है, और उसके रिलेटेड हम प्लानिंग कर सकते हैं कि कैसे हम वो ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे. तो उसके रिलेटेड भी हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं.
right? So students, these are subsystems and reports related to human resource MIS, which is the functional aspect of MIS. Okay. Another is accounting MIS. अकाउंटिंग MIS के अंदर कौन कौन से इंफॉर्मेशन एग्रीगेट करने में काम लगेगा? अकाउंट्स पेएबल होता है, अकाउंट्स रिसीवेबल होता है, पेरोल रिलेटेड एप्लीकेशंस मीन्स सब सिस्टम्स हम कंसिडर कर सकते हैं, एंड अनदर इम्पोर्टेंट सब सिस्टम्स के जो फॉर एग्जांपल हमारे अकाउंट्स मेंटेन करने में हमें हेल्प करता है, वो सारी एक्टिविटीज हम ये अकाउंटिंग MIS के अंदर कंसिडर कर सकते हैं. मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से कि अकाउंट्स रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने के लिए, अकाउंट्स रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट करने के लिए अकाउंटिंग MIS हमें हेल्प करेगा, राइट? और वहां पे हम उसके रिलेटेड उसकी सब सिस्टम्स कंसिडर कर सकते हैं कि अकाउंट पेएबल की सब सिस्टम होती है, रिसीवेबल की सब सिस्टम होती है, पेरोल सिस्टम भी हम इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं, right? So these are the different things which we can consider within accounting MIS. Means students, यहाँ पे मैंने सिर्फ ये accounting, then human resource, marketing, manufacturing and financial MIS हमने डिस्कस किया, लेकिन likewise आप अपने organization के टाइप के हिसाब से MIS को consider कर सकते हो. ये तो मैंने थोड़े बहुत फंक्शनल एस्पेक्ट्स डिस्कस किए कि MIS हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहाँ पे हेल्प कर सकता है, राइट? लाइकवाइज अगर आपकी सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उस हिसाब से भी आप MIS को कंसिडर कर सकते हो कि कहाँ पे आपको MIS हेल्प करेगा, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज अकाउंटिंग MIS. Okay. Now another information system which we can consider is GIS, that is Geographic Information System. Again I repeat, another information system which we can consider is GIS, that is Geographic Information System. Now what is this Geographic Information System? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम पूरे रिपोर्ट्स जनरेट करके देंगे, राइट? मीन्स वी कैन से ऐसी कंप्यूटर सिस्टम की जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके, स्टोर करके, उसे मैनिपुलेट करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स में डिस्प्ले कर सके, दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इज नोन एज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने न्यूज चैनल्स देखी होगी तो न्यूज चैनल्स के अंदर अभी इलेक्शन आया था, राइट? तो वहां पे फॉर एग्जाम्पल गुजरात का इलेक्शन है तो गुजरात की कौन से सिटी में कितना वोटिंग हुआ है, और उसमें से भी जितना परसेंट वोटिंग है उसमें से फीमेल एंड मेल को मुझे बाइफर्केट करना है, तो वो मैं मैप के ऊपर दिखा सकती हूँ. आप न्यूज चैनल देखोगे ना तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा. वहां पे वेदर रिलेटेड भी वो लोग ये जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करते हैं, राइट? कि कलर के हिसाब से या फिर वहां पे क्लाउड दिखा के या फिर जिस हिसाब से जो टाइप की इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करनी है वो उस हिसाब से वहां पे कलर, शेड्स, राइट, सिंबल्स यूज करके वो मैप के ऊपर वो सारी चीजें दिखा सकते हैं. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि गुजरात का इलेक्शन है, राइट? तो पूरे गुजरात का इलेक्शन खत्म होगा, उसके बाद समरी रिपोर्ट मुझे ये GIS थ्रू बना के देना है, तो मैं गुजरात का मैप लूंगी, उसके अंदर जो भी डिफरेंट सिटीज है वो मैं हाईलाइट करूंगी. जहां पे ज्यादा वोट हुआ है वो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर सकती हूँ, जो सिटी में कम वोटिंग हुआ है वो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर सकती हूँ. उसमें भी मैं 2 पार्ट्स में बाइफर्केट करके वहां पे 3D मैनर में दिखा सकती हूँ कि इतने मेल्स वोटर थे, इतने फीमेल्स वोटर थे, राइट? एज वाइज अगर हमें बाइफर्केट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं कि बिलो 30 के वोटर्स इतने थे, 30 to 50 के बीच में वोटर्स इतने थे, या फिर 50 अबव वोटर्स इतने थे. सो टेब्यूलर डेटा तो होगा ही, लेकिन वो टेब्यूलर डेटा हम कैसे मैप थ्रू आउटलाइंस बना के उसके ऊपर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर्स एंड शेड्स बना के हम डिस्प्ले कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट? ये तो हमने चलो वोटिंग की बात की. फॉर एग्जांपल हमारी प्रोडक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें टोटल सेल्स को प्लॉट करना है इन ईच एंड एवरी मींस ईच स्टेट ऑफ द कंट्री,
राइट। इंडिया के अंदर पर्टिकुलर स्टेट के अंदर XYZ प्रोडक्ट का कितना सेलिंग है वो मुझे प्लॉट करना है, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। जैसे हमने, अगर आपको याद हो तो .NET के अंदर हमने वो किया था कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 से लेस है तो हम रेड कलर से उसे प्रोग्रेस दिखाएंगे, 40 to 70 के बीच में है तो ब्लू कलर से प्रोग्रेस दिखाएंगे, 70 अबव है तो ग्रीन कलर से प्रोग्रेस दिखाएंगे, राइट। लाइकवाइज हम यहाँ पे हमारा टोटल सेल्स की रेंज भी हम बाइफर्केट करके पूरी इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्मेट के साथ साथ हम मैप के ऊपर आउटलाइंस बना के वहां पे हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, आपको स्प्रेडशीट्स तो पता ही है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो आप यूज करते ही हो, राइट। सो अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, ग्राफ्स बनाने हैं, चार्ट्स बनाने हैं, तो उस जगह पे आप ये स्प्रेडशीट्स का भी यूज कर सकते हो, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि जिसके अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम तो है ही, लेकिन वहां पे जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के हिसाब से, लोकेशन के इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम सारे डेटा को प्लॉट कर सकते हैं। टेब्यूलर फॉर्मेट में से हम ग्राफिकल फॉर्मेट में प्लॉट कर सकते हैं, राइट। So students, this is all about geographic information system, and that is the end of the topic, that is functional aspects of MIS, कि MIS हमें कहाँ कहाँ पे helpful रहेगा, राइट। इट इज नॉट लाइक दैट स्टूडेंट्स कि मैंने जितने फंक्शनल एस्पेक्ट्स बताए वही है, मैं रिपीट कर रही हूँ, राइट। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि जिसके ऊपर से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डिफिकल्टी, कोई डाउट है ये पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, तो आप मुझे पूछ सकते हो, एंड आफ्टर दैट वी विल एंड अवर लेक्चर ओवर हियर।